Okay, thank you so much for having me and for your patience इस पूरे में। जो टीवी चलता है ना, और उसमें टी हाउ डज एनीवन इन मीडिया बिजनेस मेक मनी? मैं आज की एड, तो यू नो, so this event, what right, this is part of the Build with AI series that's happening at Google. uh, this is why I wanted to show something around Gemini. मैंने originally कुछ और prepare करा था, but I think I'll try to show if I get time. And थोड़ा सा ऑफ भी हो गया, मेरी 1 बजे की मीटिंग भी है। But anyway, I'll try to cover everything. एंड मे बी अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम बीच में 5-7 मिनट का विल टेक हियटस, बट आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग दैट आई हैव। ओके, हाउ मेनी पीपल हैव ट्राइड जेमिनाई एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट? ठीक है। बाकी आई थिंक चैट जीपीटी तो सबने यूज करा है, राइट? I think over the last couple of years, Gemini as a model has improved significantly. But for me, at least, it's my daily driver. I'll be honest, क्योंकि पहले तो free मिलता है, right? And second, the outputs are decent now. One thing that I particularly like about Gemini is that it is multimodal and it has a very large context window, which means कि मैं same prompt में इमेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फाइल्स पास कर सकता हूँ। एंड मेरे को क्या कहते हैं, आउटपुट में भी अब जेमिनाई फ्लैश 2.0 के साथ मेरे को आउटपुट में भी सिमिलर, मतलब मैं मेरे को आउटपुट में भी इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस ये सब मिल सकते हैं, है ना? तो दैट इज वेयर द मॉडल सेटिंग। द सेकंड बिग एडवांटेज दैट आई लाइक अबाउट जेमिनाई इज it has the context window is especially with pro models is 2 million, and even with the lighter model which is flash is 1 million. That means that you can pass at least an hour and a half long video, right? And depending on what मतलब अगर एक 4K वीडियो अगर पास करनी है तब भी आप 45 मिनट की पास कर सकते हो, which otherwise with other models you have to chunk it through, right? With media that especially with media education industry, right? Like imagine कि अगर से someone like master thing, right? अगर उनकी live classes हैं, पूरा पूरा 8-8 घंटे की उनकी classes चल रही हैं, and if you have to analyze it, you'll have to process it a lot more. You'll have to process a lot more chance to get the insights or the shots that you want. But anyway, today's use case is largely around uh, is largely covering around the Gemini's developer capabilities, and one of the developer capabilities is function calling. Has anyone used function calling with LangChain, LangGraph, anything of that? Okay, one hand. Uh, any more? Okay. I'll keep it simple. Uh, Function calling is a way to make the model understand your regular API call, right? Which is basically saying कि मैं एज अ मॉडल, मेरा एक ट्रेनिंग पीरियड है या फिर मेरे को एक पर्टिकुलर टास्क करवाना है जो मुझे नहीं समझ लग रहा है, बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुट or I can create a tool. It is very similar to how it works in LangChain and any other model, right? And it also functions similarly, which means कि मैंने अपना फंक्शन डिक्लेयर करूंगा, फंक्शन में ये बताऊंगा फंक्शन कौन से पैरामीटर्स उठाता है, एंड देन आई विल टेल जेमिनाई कि अगर आपको ये कुछ डेटा चाहिए तो इंस्टेड इफ यू डोंट नो इट, और रादर दे मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट नो इट, तो यू कैन रीच आउट टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन एंड ये स्ट्रक्चर में आप अगर ये पैरामीटर्स पास करोगे तो यू विल हैव योर आंसर बैक, राइट? Essentially this is the flow. So if let's say if I ask Gemini की करंट स्टॉक प्राइस क्या है गूगल का, तो रियल टाइम डेटा नहीं होगा, है ना? बट अगर इफ आई आस्क जेमिनाई कि and I put it with function calling, so it can call that API on my behalf and then return the answer back this way, right? So I ask the question, it sends कि अच्छा मेरे को टिकर पे ये वाला प्राइस चाहिए, इसका मेरे को इसका रिस्पॉन्स वापस आ जाता है, and then you can have it back. So this is essentially what function calling is about. Uh, this is what we cover. I have a notebook. This is my Vertex AI ka environment. This is running Collab Enterprise, right? How, how many people here have used Collab or Kaggle?
Oh, nice. Do we have any Kaggle grandmasters here? Uh, by a show of hands, how many are data scientists? I saw a lot of AI ML people in this game, but how many are data scientists or okay, nice. Uh, CNCF में क्या कर रहे हैं? नहीं, ठीक है. I'm sure there are more interesting data communities. uh, ठीक है. So Colab is Google's. I think for a very long time, Colab was a very popular tool with data scientists and data developers. With Google Cloud, it is offered as an enterprise offering, which means कि ये जो instance है, ये सिर्फ आप ही के लिए पर है. Experience सारा Colab का आता है, but it stays within your company's premises, which of course is a requirement by enterprises. So ठीक है. Uh, ठीक है, शुरू से शुरू करेंगे. दिस इज अ वेरी बेसिक नोटबुक. ऑल ऑफ दिस व्हाट आई हैव इज प्रोग्राम्ड, राइट? सो इट्स नॉट समथिंग कि मैंने कुछ बनाया है या कुछ है. दिस इज बिकॉज दिस इज अगेन practically an ad. So it is programmed to run this way, and then maybe if we have time, I'll run you through what we can do, right? Like something that I would have really like to show. Uh, okay, so let's start off with this. This is a mock demo. This doesn't this one this particular notebook really doesn't call an API. But there is a notebook that I will show that calls an API and you can convert it to a service. It's already wrapped up that way. ठीक है. uh, यहाँ आ जाते हैं. सब okay. You start off by installing the Google Gen AI package. This is how you get started with the Google AI Studio. AI Studio और Vertex AI में फर्क पता है किसी को? How many people work on Google Cloud as such? Really? Not much, but yeah. There are ओके. अगर मैं कम्युनिटी इवेंट का पार्ट हूँ ना और मेरी कोई कंपनी नहीं है और मेरे को कोई स्टैंडर्ड, कोई कंप्लायंस, कोई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं एआई स्टूडियो यूज़ करूँगा. अगर मेरी कोई कंप्लायंस के नॉर्म्स हैं, मेरे को कुछ एंटरप्राइज, मेरे को एनक्रिप्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, है ना, मेरे को चाहिए मेरा उसमें है, तो मैं वर्टेक्स एआई यूज़ करूँगा. दैट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फायरबेस एंड गूगल क्लाउड और लेट्स से, राइट, a developer offering versus an enterprise offering. That is the difference. Of course, with developer offerings, there are also paid offers, but then also it has a decent free tier. Right? अब तो वो जो Google Code Assist है वो भी फ्री में आ रहा है, तो you can get started with it. With the one of the coolest things that I like about our current models is that you can screen share and it can debug with you in parallel, right? तो मतलब आप मॉडल से अपना स्क्रीन शेयर करो एंड देन यू कैन टेल कि अच्छा ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, राइट? एंड देन videos are 2 minutes long. Audio I think can have about 10 minutes long, which I think is, if it continues to expand, is actually insane. uh, cool. uh, okay, this is how you install the Google AI Studio ka package, right? Yeah. your screen is not Okay, sorry. Yeah, just different tabs. This is visible now. yeah. Should I zoom it a little? Little bit will help. Okay, let's see. Better? Yeah. Yeah. Yeah, so this is how you install the is there a way that I can, okay, no. This is how I install the Google ka AI Studio ka package. The package to work with Vertex AI is just Vertex AI, right? So Google hyphen Gen AI is for your for your AI Studio. Vertex AI ke liye Vertex AI ka package hai. It will connect to these, and then what you can also do is with Gen AI also you can pass a parameter such as Vertex AI is equal to true. Then it will use Vertex AI ke parameters, right? So you can do all of that without having to change a lot of your code, which would otherwise कि client change करना पड़ेगा, libraries वगैरह सब. ठीक है. I'll minimize this back so that I can also see कि क्या चल रहा है. ठीक है. Okay, next. These are just standard
authentication modules with regards to Colab. In a regular project, you would not need this. This is my project name in Google Cloud. A pro I imagine अगर बहुत लोग Google Cloud नहीं कर रहे हैं तो AWS कर रहे हैं. Yes. Yeah. A project is an equivalent of an account. Yeah. तो just उसमें ना घुसते हुए, project is an equivalent of an account. My project name is import main. Right, and यहाँ पर वही standard import OS वाला package है. Right, here I'm declaring a variable and बस इतना. यहाँ पे मेरा GenAI का ये client बन गया. यहाँ पर same जो मैं बता रहा था, Vertex AI is equal to true. It will use Vertex AI के endpoints. So that is the difference with this. And then I'm also passing the location, and this which case is US Center 1, which means all my calls will go to US, and then I will get my responses back. Okay. How do then I can define a model which is Gemini 2.0 Flash. It is supremely cheap. If someone has not tried it, I think like with cost to performance के हिसाब से it's really it's a good model. I would recommend it, and then for like most use cases it will solve your problems. And because I am in a customer engineering role, does anyone know what a customer engineer does? You help your customers with their engineering problems and very specific to your platform itself, something like that, something around. Yeah, you could say that. मुझे भी 3 साल लग गए समझाने में. खुद समझने में कि मैं करता क्या हूँ. राइट, तो मैं अब कोई पूछता है तो मैं कहा सॉफ्टवेयर डेवलपर. हाँ जी, सॉफ्टवेयर डेवलपर. तो this is where I think I really like कि tech is not a very small industry, and tech is an enabler if you look at it properly, right? तो आपको marketing में tech के roles मिल जाएंगे, या आपको HR में tech के roles मिल जाएंगे, and tech as such is very expansive that way. So my domain falls on the sales side of business, which is कि I work with customers to ensure that they are able to leverage the platform better or best to its capabilities. That is my core job. It is an equivalent of a solution architect at AWS, with an exception of that my job also has a sales component to it. Okay. So now this is what I wanted to show. This is where you can import. यहाँ पर हमने GenAI का हमने ये import करा था. यहाँ से हम इसमें functions ये कुछ types import कर रहे हैं. One is function declaration, second is generate config, third is part, fourth is tool. लार्जली इतना ही है. रिक्वेस्ट तो आपका स्टैंडर्ड जो HTTP रिक्वेस्ट मैनेज करने का मॉड्यूल वही है. राइट. ओके, नेक्स्ट. यहाँ पर दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्ट टू गेट अबाउट declaring functions. This get product info is a function declaration. So essentially I am not telling Gemini कि एक फंक्शन है get product info नाम का. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पीस है वो एक तो फंक्शन का नाम आप नीचे आएगा, ये सेम होना चाहिए. सेकंड इज गेट दिस तो एंड सेकंड इज डिस्क्रिप्शन ठीक होनी चाहिए इसकी. राइट नाउ अ डिस्क्रिप्शन इज एन इक्विवेलेंट ऑफ अ प्रॉम्प्ट, which means that when you say कि when I ask Gemini a question, the Gemini will look at the description कि उसको कौन सा function call करना है for this particular task, which is where description is very important. It will extract information out of your original prompt, right? And then basis the description, it will extract parameters. तो आपका end result जो आएगा आपको ये मिलेगा, right? स्ट्रिंग मिलेगी एक आपको, और डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट नेम, मतलब है ना, मतलब बेसिकली आपको जो टाइप आएगा, आपकी जो प्रॉपर्टीज आएंगी, या आपको जो रिटर्न कॉल आएगा कि आपको कौन सा एपीआई कॉल करना है जेमिनी को, वो इससे आएगा आपका, राइट? द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू वांट. सिमिलर गोज फॉर स्टोर लोकेशन एंड प्लेसिंग ऑर्डर, राइट? एंड अब इसमें जैसे अब ये दो पैरामीटर्स ले रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं, जैसे प्रोडक्ट एंड एड्रेस, दो अलग अलग आपके स्ट्रिंग्स आएंगे, राइट? एंड
if you see, this is a Python, इसका out मतलब this is a Python dictionary, if you look at it, right, and this is how you declare it. This is in line with the Open API का JSON schema, which people commonly generally use. दिस इज वेयर आई क्रिएट अ टूल. तो फंक्शन डिक्लेरेशन से मैंने अपना टूल बना लिया. टूल्स में मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन पास करी और तीनों अपने फंक्शंस लिखती हैं इसमें. फॉर दिस पर्टिकुलर नोटबुक, बिकॉज वी आर नॉट पासिंग it to a real API, we'll just simulate these parameters. You can start a chat session with this, with a very simple कि client है, client में chat session create करा and then passing the model, and I'm creating this config में बस इतना section मैंने पास करा है, right, which is now telling Gemini कि आपको ये function call कर, मतलब या फिर आप ये function call कर सकते हो. So I have a chat session ready. Now I can start sending messages to it. And you can get creative with many other other configurations. So you can set for top P, top K. You can penalize Gemini for setting certain or output or giving output with certain words. So all of that is doable. You can generate your config as custom as you want. ठीक है. अब मेरा original prompt है, do you have Pixel 9 in stock? Right now, if I see and if I run this cell, right now it was able to extract कि product name क्या है, और product name यहाँ पर उसने Pixel 9 extract करा, right, prompt से. and उसने यहाँ से ये उसको समझ लग गया कि अच्छा ये get product info. ये कैसे पता लगा कि let's say do you have Pixel 9 in stock. Now if we go back to our message, right, इसमें यहाँ दिया है get the stock amount and identifier for a given product, right. तो अब product name और इसका output type क्या है, Pixel 9, because ये इसका type string और इसका ये ऐसे output आ रहा है. This is what we asked for, product name, right. and because उसने prompt से identify करा है तो उसको get product info पे जाना था, तो वो get product info पे गया, right. तो ये ऐसे चल, ये इतना क्लियर है बिकॉज आगे सिमिलर. Sorted? Yeah. Pakka? Excuse Oh, me. yeah. What did you change the prompt? You have to change the So you will have to, yeah, you can change the prompt. You can change the prompt, but again, इसका description, इसका पहला तो description and second जो इसका पहला description and second जो parameter types है वो आपके सही होने चाहिए, वो inline होने चाहिए. तो you can change the prompt, right. So because this supports multiple languages, so you can also do कि क्या आपके पास Pixel 9 है. So this means that this doesn't happen real time because, like for example, if I ask for a question, it's not in the database and needs to go to the interface. Yeah. Then I have to have this pre-configured like that. हाँ, मतलब you will, so essentially what function calling is कि मैं अपने फंक्शन से मैं अपने फंक्शन के लिए पैरामीटर्स निकाल लूं using natural language and let Gemini call the function on my behalf, राइट. तो इस केस में पैरामीटर उसने क्या एक्सट्रैक्ट करा, Pixel 9, राइट, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट इन्फो का मेरा ही है कि प्रोडक्ट इन्फो, मेरा ओरिजिनल प्रॉम्प्ट था डू यू हैव Pixel 9 इन स्टॉक. उसने प्रोडक्ट इन्फो आइडेंटिफाई करी बिकॉज इसमें आप हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आइडेंटिफाई फॉर अ गिवन प्रोडक्ट क्या है, राइट. एंड मेरे को उसके एंड में पैरामीटर मिला प्रोडक्ट नेम. ठीक है, हमने इसमें बस एक टूल बनाया है, आप और टूल्स बना सकते हो, राइट. बट और ये मतलब ये एक टूल है, इस टूल में 3 फंक्शंस हैं. सिमिलरली यू कैन क्रिएट डिफरेंट टूल्स और उनमें अगर एक पीछे अगर मैं जाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा कि आप मल्टीपल टूल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो असेंशली. फिर उसके बाद ये वाला टूल आप अपने इसमें जहाँ पे आप अपनी चैट स्टार्ट करते हो ना, आप यहाँ पर बता देते हो ये इसको टूल्स अवेलेबल है जेमिनाई को. अगर तो मतलब अगर उसको नहीं समझ लगता है तो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करके ये एपीआई कॉल करनी है. हमारे केस में क्योंकि सारा ये मॉक है, राइट, तो पहले तो ये फंक्शन समझ गया, लाइक डू यू हैव Pixel 9 इन स्टॉक. अगर मैं इसको फंक्शन कॉल डॉट जीरो हटा के अगर मैं इसको टेक्स्ट कर लेता हूँ, राइट, तो इसको कुछ मिला नहीं है, है ना.
बट अगर हम वापस, क्योंकि चैट कॉन्वर्जेशन है, इसको अभी कुछ मिला नहीं है या इसने इसलिए यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। बट अगर मैं इसमें जाता हूँ और मैं इसको एपीआई रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, है ना, एक जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, राइट, एंड मैं वापस चैट में अगर मैं ये पास करता हूँ, तो अब आपको रिस्पॉन्स आएगा बिकॉज यहाँ पर येस था। मतलब बेसिकली एपीआई रिस्पॉन्स था और रिस्पॉन्स में हमने ये पास करा कंटेंट इसका चैट का, राइट। और ये क्योंकि हम एक मॉक ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे, तो देन इट सेड कि अच्छा गेट प्रोडक्ट इन्फो में पास करा कि अच्छा एपीआई रिस्पॉन्स यस, और फिर वापस वो नेचुरल लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्स आ गया इसका, ये आया कुछ, ठीक है, फेक रिस्पॉन्स है, बट इसका एक्चुअल एपीआई भी अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो इसके साथ काम। हाँ, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया, तो इसके बेसिस पे इसने रिस्पॉन्ड कर दिया कि अच्छा यस वी डू हैव पिक्सल 9 इन स्टॉक। दोबारा चलाऊंगा तो वेर क्योंकि सेम उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो बट लेट्स से, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो इसमें लेट्स से मैंने प्रॉम्प्ट पास करा व्हाट अबाउट पिक्सल 9 एक्सेल, पिक्सल 9 प्रो एक्सेल एंड इज देयर अ स्टोर इन माउंटेन व्यू। अब इसमें दो दो क्वेश्चन है, दो प्रॉम्प्ट है, राइट, कि पहले तो पिक्सल 9 प्रो के लिए गेट इन्फो चाहिए एंड दूसरा ये जो लोकेशन की अवेलेबिलिटी पे मेरे को बताना है कि क्या मेरे को ये मिलेगा या नहीं। मैं बस ऐसे रिस्पॉन्स चेक कर रहा था। तो लेट्स से अगर मैं इसको हाइड कर दूं, तो इस केस में इसको पता है कि क्या कहते हैं, दो दो कॉल लेनी है। पहले तो कि अच्छा पिक्सल 9 प्रो के लिए गेट प्रोडक्ट इन्फो चेक करना है एंड सेकंड माउंटेन व्यू सीए की के लिए गेट स्टोर लोकेशन देखनी है, ठीक है। अब ये क्योंकि अब मेरा क्या है, एज अ चैट इनपुट मेरा सिर्फ इतना इतना प्रॉम्प्ट है। जेमिनाई क्या कर रहा है, उसमें से आइडेंटिफाई कर रहा है कि अच्छा माउंटेन व्यू के लिए गेट स्टोर लोकेशन कॉल करनी है और प्रोडक्ट इन्फो के लिए गेट प्रोडक्ट इन्फो कॉल करना है, ठीक है। अ, अब इस सिमिलरली हमने इसके लिए दो रिस्पॉन्स क्रिएट करे, ठीक है। तो इन स्टॉक यस और स्टोर लोकेशन हमने ये दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे इसमें, एंड वापस हम प्रॉम्प्ट में अगर हम यही पास करेंगे तो हमको इससे आंसर मिलेगा कि हाँ यस वी हैव पिक्सल 9 प्रो इन स्टॉक एंड द स्टोर इज लोकेटेड यहाँ पर, तो ये वाला आपके सबसे नियरेस्ट है, राइट। तो यहाँ तक हम आ गए। नाउ लेट्स से इफ यू डू कि अच्छा आई लाइक टू ऑर्डर, अब यहाँ तक पहुंच गए इस प्रॉम्प्ट में, आई लाइक टू ऑर्डर पिक्सल 9 प्रो एक्सेल एंड हैव इट शिप टू, तो मैंने इस केस में यहाँ अपना एड्रेस दे दिया, राइट। अब वापस इसमें जो इसने फिर तीसरा फंक्शन कॉल करा जिसका नाम था प्लेस ऑर्डर, और प्लेस ऑर्डर में इसने ले लिया कि अच्छा ये एड्रेस है और ये प्रोडक्ट है। अगर हम इसका जाएंगे और फंक्शन डिक्लेरेशन देखते हैं अगर हम इसकी, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट एंड एड्रेस लेता है, दो इनपुट। तो आप इसको और जितना एक्सपेंसिव करना आप एक्सपेंसिव कर सकते हो विद नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट अ फंक्शन कैन टेक, ठीक है। अगेन सिंथेटिक डेटा है, आपने एपीआई का रिस्पॉन्स इसका कॉन्स्ट्रक्ट बनाया, वापस मॉडल में भेज दिया, आपका रिस्पॉन्स आ गया कि अच्छा आई हैव प्लेस। मतलब दिस कैन बी वेरी एक्टिव एपीआई कॉल्स आल्सो, बट दिस इज व्हाट यू डू विद, राइट। नाउ अगेन एग्जांपल, नाउ दिस इज फॉर अ रियल फंक्शन। अब पहले हम फेक फंक्शंस यूज कर रहे थे या फेक कॉल्स यूज कर रहे थे। अब अगर लेट्स से गेट लोकेशन नाम का कोई फंक्शन है, राइट, और वो मैं, हाँ, अगर गेट लोकेशन नाम का अगर फंक्शन है, तो I can pass this function as part of my function call, which means कि मैं कहीं पर अपने टूलिंग में ये लोकेशन ये डिक्लेयर करूंगा और ये वाला ये सब पैरामीटर्स लेता है। तो मेरे को बताना पड़ेगा जेमिनाई को कि ये सब पैरामीटर्स हैं मेरे पास। ये सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन थी, राइट। और टूल्स में मैंने बस एक गेट लोकेशन करके ये एक पैरामीटर पास करा है इसके केस में यहाँ पर।
ठीक है। ये कौन सा है, ये वाली एपीआई कॉल कर रहा है। इसने क्या करा, ये एड्रेस लिया, ये एड्रेस का क्या कहते हैं, इससे ये वैल्यूज निकाली, और ये वैल्यूज निकाल के ये एपीआई में पास कर दी। ठीक है, आपको उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स आ गया कि आपको कोऑर्डिनेट्स क्या है लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के। दैट एसेंशियली इज योर फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, डन, इतना ही। Similarly with Gemini you can do it in a multimodal fashion. I'll not take a lot more time. Similarly with Gemini you can do this with multimodal models. So in the same prompt, अब जैसे हम वहाँ पर text based prompt पास कर रहे थे, तो सेम हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये पास कर सकते हैं कि look up the region where an animal can be found, right? तो इस केस में अगर हम ये image पास करते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट इसका रीजन मिल जाता है। And you can do it with similarly with videos, or you can do it with say audio also, audio files, whatever you would like. Yeah, that's pretty much it. uh, अगर हाँ, Again, you are not sure. ओके, सॉरी, ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, वापस दिखा देता हूँ ये वाला। लेट्स से अगर मेरे पास ये इमेज है और मैं अगर एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ कि गेट वाइल्ड लाइफ रीजन एंड आई पास इट व्हाट लुक अप द रीजन वेयर एन एनिमल कैन बी फाउंड, राइट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एनिमल। तो जेमिनी इसको एनालाइज करके सर्च करके अपने बिहाफ पे it will get you the answer. Same it can go for say these videos or audio or files, for example, right? Like you can get information about a company by querying some API call. So all of this can be boiled down to natural language. So for a user, the medium of interaction changes, right? Like imagine the way it works आज की डेट में हम buttons या clicks या hover या whatever medium of interaction that we use to work with our apps, a lot of this will just boil down to natural language, right? Like and that is what we are aiming for with these LLMs. So yeah, this is what I was showing starting में, right? तो अब this is a notebook about how can you use function for a real time company news and insights. इसमें मेरे को बस आपको ये दो चीजें दिखानी थी। इट वर्क्स वेरी सिमिलर, बट इसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या है। अब जैसे इसमें मेरे पास गेट स्टॉक प्राइस एक फंक्शन है या गेट कंपनी ओवरव्यू एक फंक्शन है, राइट, या मेरे पास ऐसे मतलब 4 फंक्शंस डिक्लेयर्ड है। मैंने सेम इसका वैसे ही टूल बनाया। ये अल्फा वांटेज करके सर्विस है जो मेरे को ये सब इंफॉर्मेशन देगी, बट मैं अल्फा वांटेज की एपीआई यूज करके अब इस केस में अगर आप ये देखोगे तो गेट न्यूज विद सेंटिमेंट जो है ये सेम फंक्शन मेरा यहाँ पर है, क्या कहते हैं, गेट न्यूज विद सेंटिमेंट। ठीक है, और इस केस में मैंने क्या करा, फंक्शन हैंडलर को मैंने बोला कि अच्छा ये अगर आपको ये वाला लगता है, ये वाला फंक्शन आपको कॉल करना है या ये टूल कॉल करना है, तो उसके लिए ये एपीआई मतलब इस एपीआई को पैरामीटर पास करो। तो ये वाला जो फंक्शन का आपका नाम है और ये वाला फंक्शन का नाम, पहले तो नाम सेम होना चाहिए, दूसरा डिस्क्रिप्शन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब इस केस में क्या होगा कि लेट्स से अगर मेरे को न्यू सेंटिमेंट अगर मैं उसको पूछता हूँ कि व्हाट, लेट्स से अगर यहाँ पर नीचे जाते हैं तो एक सेकेंड, अच्छा अगर कुछ और, लेट्स से अगर मेरे को सिर्फ स्टॉक प्राइस ही अगर मैं क्वेरी करता हूँ फॉर एग्जांपल, राइट, तो गेट स्टॉक प्राइस ही अगर मैं क्वेरी करता हूँ तो ये मेरे को ये वाले पैरामीटर्स देगा, राइट। ये वाले पैरामीटर्स लेके मैं इस एपीआई के पास मतलब मैं ये जेमिनी ये समझ जाएगा कि मेरे को गेट स्टॉक प्राइस वाला ये कॉल करना है और इस फंक्शन को पास करना है। इस फंक्शन में जब मैं पास करूंगा तो मेरा ये इस पे जाएगा, तो जो भी मेरा कंटेंट के जो वेरिएबल्स निकलेंगे या बन के आएंगे मैं उसमें ये पास करूंगा और मेरी एपीआई का मेरे को रिस्पॉन्स वापस मिल जाएगा। सेम रिस्पॉन्स मैं अपने स्क्रीन पे मैं शो करा दूँ। ये थोड़ा लग रहा है कहीं पे जा रहा है ये, थोड़ा थोड़ा देखो दो चीजों पे फोकस करना है ना। मैंने फंक्शन डिक्लेयर
मेरा फंक्शन का डिस्क्रिप्शन ठीक होना चाहिए जिससे जेमिनाई को ये पता लगे कि ये फंक्शन करता क्या है, ठीक है। उससे जेमिनाई मेरा इंटेंट आइडेंटिफाई करेगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन मेरी अप्रोप्रिएट है। सेकंड, जो मेरे को फंक्शन एक्चुअल में कॉल कराना है, मेरे फंक्शन तो वो नॉर्मल कोई भी कोड हो सकता है ना। आप अगर लेट्स से अगर मैं किसी फूड डिलीवरी ऐप के लिए काम करता हूँ फॉर एग्जांपल, अब मेरे को अगर इतना ऑर्डर करना है कि अच्छा मैं आई वांट टू ईट चाइनीज टुडे एंड मेरे को घर पे भिजवा दो। अब इसके वेरिएबल्स कितने कितने निकलते हैं कि अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट, मेरा फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट कौन सा है, ये अगर उनके पास इंफॉर्मेशन होगी ये निकल सकता है ना। मेरा मेरे घर पे भिजवा दो और मेरी पेमेंट डिटेल्स ये है, ये सब एक प्रॉम्प्ट में आ जाएगा। मेरे को सिर्फ मतलब, है ना, उसमें उसमें मैं ये पैरामीटर्स निकाल सकता हूँ। तो लेट्स से इफ आई वर टू प्लेस अ प्रॉम्प्ट लाइक दिस, इट वुड मेक 3 फंक्शन कॉल्स कि मतलब चाइनीज के लिए रेस्टोरेंट्स कौन से हैं, मैं मेरी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है रिकमेंडेशंस के लिए, मेरे घर का एड्रेस क्या है और मेरी पेमेंट डिटेल्स क्या है, राइट। ये 4 फंक्शन हो गए। और वो उसको कैसे पता है कि यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया है कि इसके लिए ये कॉल करो। अब पीछे तो माइक्रो सर्विस तो लिखी है ही, राइट। मुझे भी बहुत टाइम लगा था सो समझने में कि ये काम कैसे करता है, बिकॉज एक तो ये जो पहली वाली नोटबुक दिखाई उससे समझना और मुश्किल हो जाता था। बहुत सिंपल टर्म से बोले तो एक काइंड ऑफ ग्लोरीफाइड स्विच है यहाँ पे। मैं मल्टीप्लेक्सिंग कह लो, हाँ। मल्टीप्लेक्स कंफर्मेशन देता है, जैसे मान लो पेमेंट या एड्रेस प्लीज कंफर्म वो तो आप अपने फ्लो में डिजाइन करो, वही कह रहा हूँ। तो ये जैसे यहाँ पर फंक्शन है गेट स्टॉक प्राइस फ्रॉम एपीआई, अब ये रेगुलर पाइथन फंक्शन है। इसमें अब आप ऑथेंटिकेशन का फ्लो डालोगे कि अच्छा वेट इनपुट फ्रॉम यूजर या ये, तो आप इसके आगे आप और कोई फंक्शन कॉल कर लो, क्योंकि जेमिनाई ने तो ये फंक्शन कॉल करा है। इसमें आप एक और फंक्शन कॉल कर लो कि अच्छा इसके बाद ये वेब पेज खुलेगा, उससे ये रिस्पॉन्स आएगा, इफ यस तो आगे बढ़ो, तो ये रिस्पॉन्स भेजो वापस, नहीं तो ये रिस्पॉन्स भेजो वापस। वो आप आगे और चेंज कर सकते हो इसको। बट एक एक स्टेटमेंट में पहली बात तो जेमिनाई मल्टीपल फंक्शंस कॉल कर सकता है विद विद अ डिक्लेरेशन, राइट। सेकंड, आपको हाँ आपका आपको रिस्पॉन्स नेचुरल लैंग्वेज में मिलता है। So can we say we are building a kind of an interface where end user is interacting, and at behind we are creating dedicated agents that are working behind the scene. या एजेंट्स ना थोड़ा ग्लोरीफाइड टाइटल हो जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट एन एजेंट, उसमें कुछ एजेंसी नहीं है। उसके बाद आपने कोड लिखा है, आप इसमें इफ एल्स डालोगे वो इफ एल्स जैसा काम करेगा, राइट। बट द पावर इज इन फॉर द एलएलएम टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मेरे को ये फंक्शन कॉल करना है, Right. ये फंक्शन कॉल करना है ये पैरामीटर्स के साथ। So ideally the person doesn't have to fill the form. They can directly write हाँ, whatever they want. correct. That will be filled out करेक्ट, automatically. करेक्ट, यस, ये कर सकते हो आप। ये बहुत अच्छा यूज केस है अगर आप ऐसे देखोगे तो। हाँ जी। So let's assume we're building for Zomato itself. So हमारे prompt में let's assume हमारे 50 functions हमने define कर दी for them. And what if LLM 50 में से मतलब multiple calls कर रहा है? So अगर हम इसको अगर बड़े scale पे करेंगे तो latency का कैसे मतलब solve होगा? उसमें कोई आई डोंट थिंक कोई ऐसा इशू है लेटेंसी। 50 कॉल करेगा फिर आप कई बार फिर आप LLM से so like this be scalable to like throughout करोगे या फिर अभी हाँ, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये तो एक केस है, जैसे अब एक्चुअल जब आप इसकी सर्विस बनाते हो तो सर्विस ये ऐसी आएगी, मतलब ये रेपो है, सेम रेपो में। सेम स्क्रीन इशू। अच्छा, या अब एक्चुअल तो कोड ऐसा आएगा कि ये बेसिक मेरी ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। गेट लोकेशन करके मैंने अगर फंक्शन बनाया और क्या कहते हैं इसमें मैं बस ये इतना पास कर रहा हूँ, तो ये मेरा ये एपीआई पे ये एंड पॉइंट पे ये एक रिक्वेस्ट भेज देगा बेसिस की उसने क्या एनालाइज करा। So it will be a single call to the हाँ, अभी इस केस में हाँ एक ही है, राइट। बट जैसे अगर मान लो वो अब ये वाला जो दिखा रहे थे जिसमें उसको जब हमने पूछा कि पिक्सल 9 एक्सेल है या प्रो एक्सेल है या नहीं, और क्या ये इसके आसपास मिल जाएगा, तो उसमें पैरेलली दो फंक्शन। हाँ, in case if the person give the example, like if we have a 40 functions in behind the scene, then for each इट विल मेक सीक्वेंस। बट आप इसमें देखोगे तो एक नोटबुक के पैरेलल फंक्शन कॉलिंग की भी है, तो यू कैन मेक पैरेलल फंक्शन कॉल्स फॉर
and multiple function responses in But Gemini. जितने function call हो रहे हैं उतनी LLM calls actually में है, हाँ right? हाँ Costing why? Then when the costing is comes up, then it is on the token or it is on the calls. ऑन द नंबर ऑफ टोकन्स जेमिनाई में दो हैं, एक तो प्रोविजन थ्रूपुट करके है जिसमें आप अनलिमिटेड जितना मर्जी करना है आप करो, और अदरवाइज जेमिनाई में ये है, अदरवाइज जेमिनाई में आप मतलब पर टोकन भी कर सकते हो। अभी शायद प्राइसिंग में चेंजेस भी हो रहे हैं, पहले वो पर टोकन था, अब पर कैरेक्टर है, यू कैन चूज बिटवीन द टू, वैसा कुछ है इसका हिसाब अभी तो यू कैन डू दिस एंड देन देर आर दीज टू नोटबुक्स ऑल्सो कि अच्छा अगर मेरे को फंक्शन फोर्स ही कॉल कराना है, जैसे इसमें अगर ये वाली जो नोटबुक है इसमें है कि मेरे को फोर्स करना है कि आर्काइव में जाके मेरे लिए पेपर सर्च करके लेकर आए, तो ये आर्काइव की एपीआई यूज करता है, रिसर्च पेपर्स, राइट। तो नाउ आई एम इंश्योरिंग कि एक पर्टिकुलर तरीके से ही उसको एक तो स्ट्रक्चर बने, दूसरा इस पर्टिकुलर यही एपीआई कॉल वहां पर जाए, बट मेरा एक यूजर के लिए या मेरे लिए मोड ऑफ इंटरेक्शन नेचुरल लैंग्वेज है। मतलब टोटल पावर फंक्शन कॉलिंग का जो फंडामेंटल है या जो पर्पस है वो यही है कि मैं एलएलएम को बोलूं और वो मेरे बिहाफ पे मेरा एपीआई माइक्रो सर्विसेज या जो भी है मेरे बैकएंड का मैं वो कॉल कर दे, राइट। इट जस्ट चेंजेस इंटरफेस एंड इट मेक्स इट मोर इंटुइटिव कि मतलब अगर 3 क्लिक करने की बजाय अगर मैं ये बोल दूं कि अच्छा यहाँ पर भेज दो, जैसे वो लास्ट वाला था कि ये वाला है, ये मेरा एड्रेस है, इस पे भिजवा दो, तो पिक्सल 9 प्रो इस एड्रेस पे भिजवा दो, इट न्यू की पिक्सल 9 प्रो है, ये मेरा एड्रेस है, और अच्छा डन, राइट। तो मेरे लिए एज ए मोड ऑफ इंटरेक्शन मेरा तो इंटरफेस चेंज हो गया ना ऐप पे, तो मेरे को उसमें 2 स्टेप नहीं करने के, अच्छा पहले कार्ट में जाऊंगा, फिर कार्ट से मैं उसको एड्रेस अपना ऐड करूंगा, बैंक डिटेल ऐड करूंगा, राइट। फिर तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है इससे। That is for function calling, right? This is how you would put it outside of a notebook is what I wanted to show. ये जो मैं पहले भी दिखा रहा था कि नोटबुक के बाहर तो मेरा ये फंक्शन हो गया गेट लोकेशन, और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर करा और इसमें मैंने ये पास कर दिया ये लोकेशन टूल, तो ये मेरे बिहाफ पे ये फंक्शन कॉल करके ये मेरे को रिस्पॉन्स क्या कहते हैं डिलीवर कर देगा। जैसे अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये लिखा है कि अच्छा ये फंक्शन कॉल है, इस एपीआई को कॉल करना है, और यहाँ पर पैरामीटर पास करके ये लेकर आना है, ठीक है, ये डन। फंक्शन कॉलिंग का कहीं समझ लगा, कुछ आया, कुछ लगा फायदा हाँ फायदा है ना, ठीक है। मेरे को बस एक छोटी चीज दिखानी थी जो मेरे को एक्चुअल दिखानी थी, कितने लोग एलएलएम्स बना रहे हैं या एआई यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, would not sit बना नहीं बना भी सकते हैं, मैं बहुत लोगों से, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इन्फ्रेंसिंग में आज की डेट में या एलएलएम्स को लेके? mostly when you are in a top. First is security that comes up. ठीक है, Data किधर जाएगा. Second is like cost, because when we call one API, it's not a big deal. But when we deploy on enterprise, it depends on the users. So if we have like 1,000 users and one user can at least call 100 times in a day, it is a big deal now. Now cost will go higher. Then we have to figure out can we do some optimization, because we are not saying stop the calling, but we want it to be little bit lesser. So I can say like sometimes what happen if we are calling something and same thing some other person from my organization is going to call, can't I catch that part somewhere, kind of thing, right? This is thought. I'm not saying how to achieve it, वो तो आपका मॉडल सपोर्ट करता हो तो आप कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट कैशिंग, right? So that is how these are the some things we are receive the conversation. Apart from that is like a wrong prompts when we say. Sometimes we are just pushing something whatever comes to your mind, but it is not good to shoot up. So that is also. ठीक है। ओके, आई थिंक सो हमने सिक्योरिटी कवर करा है, कॉस्ट कवर करा है, और कोई एक्यूरेसी, एनी अदर आइडियाज? सो
सिक्योरिटी दो तरीके से देख सकते हो। एक इज कि वन इज योर मॉडल रिस्पॉन्सिबल इनफ, तो एक रिस्पॉन्सिबल एआई का एक पार्ट है कि मैंने जो बनाया मेरा सेफ है यूज करने में, राइट, which is where a lot of focus from Google side goes ki, and we've seen public incidents happen, so we know कितना सिक्योरिटी। सेकंड इज कि मेरा मॉडल पब्लिक है, उसमें कोई अपना, क्योंकि डेटा का क्या है ना, वन थिंग आई रियलाइज वर्किंग इन जॉब्स इज कि यू कैन टॉर्चर इट एनफ टू से एनीथिंग यू वांट, है ना। तो सेम गोज फॉर मॉडल्स, है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो यू कैन पुट इट कि अगर मैं उसमें खराब प्रॉम्प्ट्स डालता जाऊंगा, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग से सीखता जाएगा, तो अल्टीमेटली इट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट। तो सेकेंड इज कि अगर कोई मेरे मॉडल को हाईजैक ना करने की कोशिश कर रहा हो, मैंने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करे, वो नहीं चल रहे होते सही, या मॉडल को मैंने लेट्स से ट्रेन करा था सिर्फ गाड़ियों के बारे में, वो मेरे को बता रहा है कि जापानीज खाना कितना अच्छा होता है, राइट, या तंदूरी सुशी कैसे बनाते हैं, वैसे ही नहीं बनानी चाहिए, पता नहीं क्यों बनाते हैं, बट एनीवे, राइट, दैट इज द पार्ट ऑफ, वहां पर एक्चुअल सिक्योरिटी का पार्ट है कि प्रॉम्प्ट इंजेक्शन ना हो, मेरे लिए क्या कहते हैं, मेरी एपीआई कॉल्स कंप्यूटेशनली एक्सप्लोसिव ना हो, कि मतलब मैंने एक सिंपल सा रिक्वेस्ट भेजा बट वो और अलग चार, मतलब, है ना, मैंने रिक्वेस्ट भेजा कि मेरा पिक्सल 9 ऑर्डर कर दो, पीछे उसकी बिटकॉइन माइनिंग शुरू हो गई, राइट। तो ये सब नहीं होना चाहिए। थर्ड जो मैं जनरली मार्केट में देख रहा हूँ इज कॉस्ट। अब कॉस्ट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं एआई में? Training and then API calling for inference. ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस, Hmm. एनी अदर कॉस्ट? hosting. होस्टिंग, एनीवन एल्स, कोई और? डेटा मैनेजमेंट, यस, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। हाँ जी, हाँ, वो इन्फ्रेंसिंग उसमें या होस्टिंग में आ गया, ठीक है। एनी अदर आइडियाज या थॉट्स? लार्जली यू आर राइट, फॉर एनी कंपनी दैट इज नेटिवली एआई, उनके लिए ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंसिंग की ही कॉस्ट होती है। व्हाट वी आर सीइंग विथ 2025 एट लीस्ट, एंड अगर किसी ने जीटीसी देखा लेटली, नहीं. उसमें अगर देखोगे देयर वाज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन बिल्डिंग चिप्स दैट वर बेटर एट इन्फ्रेंसिंग नाउ, है ना। ट्रेनिंग पे तो बहुत सालों से काम हो रहा था, राइट, विच इज वेयर एनवीडिया का स्टॉक प्राइस इज वेरी एविडेंट प्रूफ, राइट, इज अ वेरी विजिबल एविडेंस, राइट। या फिर एवरी कंपनी वाज कि अच्छा मेरे पास hordes of data पड़ा है, how can I monetize it, right, which was the training, but now people are saying कि अच्छा मैं inferencing कैसे improve कर सकता हूँ, right, and for a lot of people inferencing is कि कॉल भेजी वापस आए, है ना। और सबका वर्कलोड ऐसा नहीं है कि 24 घंटे उनका कॉल चलते जा रही है, राइट। तो बहुत सारे लोगों की कॉल्स मोमेंटरी भी होती हैं कि अच्छा मेरा सीजन है, या मेरे दिन में अगर मैं एक स्टॉक मार्केट की कंपनी हूँ जिसमें मतलब मेरे को सिर्फ फाइनेंशियल इनसाइट्स पता करने हैं मोमेंट टू मोमेंट, राइट, तो मेरा 9 से 3 ही चलेगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा इतना सर्वर लेके, विच इज ऑलरेडी 30, मतलब जो सबसे बड़ी आज की डेट में प्रॉब्लम है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मुझे लगता है, राइट। कॉस्ट और ये सब एक गवर्निंग फैक्टर है जो डिफाइन करता है आप ऑपरेट कैसे करोगे, बट मिलेगा कहाँ से पहले, क्योंकि अभी तो सप्लाई चेन ही नहीं आ रही, है ना। एंड ये कोई प्रॉब्लम वेरी पब्लिकली, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर ऑल क्लाउड प्रोवाइडर्स और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, राइट। आप को लोकल पे होस्ट करोगे, या आप मेरे पास आओगे गूगल क्लाउड के लिए, या आप किसी और क्लाउड प्लेटफॉर्म के पास भी जाओगे, सबके पास सप्लाई का प्रॉब्लम है, राइट। तो वो आपको क्या जनरली बोलेंगे कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें 6 महीने के लिए इतने डब्बे आपके, upfront cost. है ना। पर आपका धंधा तो चलता नहीं है उतना, आप तो सुबह 9 से 3 काम करते हो, है ना। तो ये वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। what you can do is, and I know there are solutions out in the market that do this, the advantage of doing it this way is कि you are already integrated in a platform, uh, और आप यहाँ से मतलब आपका इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम, ईग्रेस का प्रॉब्लम, होस्टिंग का प्रॉब्लम,
You don't have to talk to 4 different vendors and negotiate 8 different things कि अच्छा इसका प्राइस इतना कर दो, इसका प्राइस इतना कर दो, right? So this is the solution to that. Cloud Run is a serverless container management platform. I love this product. I think जब मैं अपनी GDG डेज में था, कोई GDG के इवेंट में जाता है क्या वैसे, बाय द वे? या आई रिमेम्बर यू फ्रॉम देयर, तो ओ नाइस। ये लेटली जाना शुरू करा है या पहले जाते थे? हाँ, तो ठीक है। आई यूज्ड टू बी एन ऑर्गेनाइजर फॉर GDG क्लाउड न्यू दिल्ली अबाउट 3 years ago, जब गूगल ज्वाइन करने से पहले, एंड देन again conflict of interest के अंदर I could not be the organizer anymore. But even like lot of my demos when I would be at GDG would be about Cloud Run. From a developer standpoint, उसको आप बस कंटेनर देते हो और वो कंटेनर चला देता है, राइट? इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरा कंटेनर है और मैं चलाता हूँ उसको, बस बस उसमें इतना है, उसमें कोई क्यूबरनेटीज नहीं है, आपको कोई एपीआई कॉल नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कोई सीक्रेट मैनेजमेंट। करना है कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं, राइट? क्लाउड रन में अब सपोर्ट है कि आप जीपीयूज लगा सकते हो, राइट? विच मीन्स कि आई कैन स्टार्ट एंड इंस्टेंशिएट अ कंटेनर विद अ जीपीयू। तो वो रियल टाइम पे जब मेरी रिक्वेस्ट आती है तब वो कंटेनर स्टार्ट होता है, और जब मैं कंटेनर बंद जब जब वो रिक्वेस्ट खत्म हो जाती है तब वो कंटेनर बंद हो जाता है, राइट? एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वन कंटेनर कैन हैंडल 80 रिक्वेस्ट। वर्सेल में अभी बहुत रिसेंटली आया है ये, right? But at any given point in time, one container can handle about 80 requests. You can change this parameter if you want, but 80 is an ideal number, right? And 2 million requests per month are free, which means कि for me as a company, अगर मैं inferencing workloads इस पर डालना चाहता हूँ, this is a very good use case. I'll just show ये क्या कहते हैं, इसका console है। I'll just show कि इसमें कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरी जेमा 3 जो अभी पीछे लॉन्च हुआ है 2-3 दिन पहले, इसका 4 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल है। आप 8 बिलियन वाला भी लोड कर सकते हो, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो यू कैन मेक इट लाइक रियली बिग। आप 32 GB तक की रैम ले सकते हो, तो मॉडल पूरा का पूरा उसी टाइम पे लोड हो जाता है, ठीक है? आई सिलेक्ट दिस इमेज, जेमा 3 4B2, क्योंकि ऑलरेडी एक सर्विस डिप्लॉयड है, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। अलाउ अनऑथेंटिकेटेड, ओके। बिलिंग में चूज कर सकता हूँ रिक्वेस्ट बेस्ड और इंस्टेंस बेस्ड, एंड देन आई कैन डिफाइन वेदर इट ऑटो स्केल्स और इट स्केल्स मैनुअली, ठीक है? Second, what I can do here is I can give it the biggest memory, and I can give it the biggest CPU, and I can attach a GPU to it. Okay, इसके लिए इंस्टेंस बेस्ड, राइट? इसके साथ मैंने अपना L4 एक GPU जोड़ दिया है। आई क्लिक ऑन डन। क्या रहेगा इसमें, ठीक है? नो जोनल रिडंडेंसी, बस ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, एंड आई क्लिक क्रिएट। लेट्स सी, आई होप कोई इश्यू ना हो, फिंगर्स क्रॉस। One question, please. या How is it different from AWS Lambda? लैम्डा आपको पब्लिक एंड पॉइंट नहीं देता, और लैम्डा आपको HTTPS, हाँ, लैम्डा आपको HTTPS एंड पॉइंट नहीं देता। नॉर्मली पीपल लैम्डा के आगे API गेटवे लगाते हैं रिक्वेस्ट वगैरह मैनेज करने के लिए। Uh, बस ये because out of the box है इसीलिए। हाँ, और आप लैम्डा में कंटेनर नहीं पास करते। लैम्डा कंटेनर्स करके कुछ आता है जो जितना मुझे पता है। नहीं, आप इमेज उसको पास कर सकते हो, it can run that image. फिर वो अभी आया होगा आई थिंक। मैंने जितने लैम्डा के साथ लोगों के चैलेंजेस देखे हैं वो यही है कि उनको कोड रिफैक्टर करना पड़ता है जब उनको कंटेनराइज करना होता है। People usually pair it up with Fargate,
Fargate एक option है. Fargate is a closer offering, is I would say. बट मेरे हिसाब से अगर आप डेवलपर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखोगे, प्योरली फ्रॉम अ डेवलपर स्टैंड पॉइंट, राइट, लाइक इमेजिन इफ आई वर नॉट फ्रॉम गूगल, आई वुड स्टिल से दैट दिस इज गुड बिकॉज आई वाज यूजिंग इट व्हेन आई वाज नॉट इन गूगल. तो आई हैव रियली लर्न टू लाइक दिस प्रोडक्ट. आप चला के देखना, इसका एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ है. मतलब अगर जैसे ये वाली में जो सर्विस दिखा रहा था, राइट, तो इसमें अगर मेरे को अगर ये सर्विस चलानी है, चलो चला के दिखा देते हैं. हाँ, और इनफैक्ट इसमें मतलब आप बिल्ड आपको अगर करना है तो यू कैन बी एट सोर्स कोड एंड यू कैन जस्ट टाइप की. मैं दिखा देता हूँ, राइट, इट इज जस्ट मोर फन. ओके, आई होप इसमें ये हो. हाँ ठीक है. cd generative AI. ओके, cd Gemini slash calling. ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया, यही सर्विस है ना. ओके सॉरी. राइट, यही वाली सर्विस थी हमारी. इसको अगर एक्सपैंड, अच्छा बाय द वे, वो जो हमने डिप्लॉय करना शुरू करा था, आई डोंट नो अगर मैं पहले ही दिखा, तो ये अब डिप्लॉय हो गया है. तो नाउ वी कैन स्टार्ट सेंडिंग रिक्वेस्ट टू दिस एंड पॉइंट. लाइक एनीवन कैन पिक दिस एंड पॉइंट एंड स्टार्ट. इसमें ये कुछ नहीं है, ये इसमें ओलामा के थ्रू बस मैंने मॉडल होस्ट करा है एक कंटेनर इमेज में, एंड मैंने बस डिप्लॉय कर दिया. मैं वो भी दिखा देता हूँ एक्चुअली, राइट. तो नाउ दिस एंड पॉइंट इज रेडी फॉर अस टू यूज. मैं दोनों चीजें दिखा देता हूँ. इसमें अगर आप देखोगे तो, अरे यार, राइट, ये फाइल्स हैं. आई कैन जस्ट गो टू जी क्लाउड, रन, डिप्लॉय. सोर्स कोड लोकेशन यही है, एंटर, सर्विस नेम यस. ये मेरे से रीजन पूछेगा, रीजन लेट्स से लेट्स डू 34 विच इज यूएस सेंट्रल 1. अलाउ ऑथेंटिकेटेड यस. और इतने में मेरी सर्विस बिल्ड होना तैयार. ठीक है, दैट्स वन. सेकेंड दैट आई वांटेड टू शो वाज कि अगर इसको करते हैं ls cd ओला बैकएंड. ठीक है, अगर मैं इसकी डॉकर फाइल कैट करूँ ना, तो इसकी सिर्फ इतनी डॉकर फाइल है और मैंने बस इतना ही डिप्लॉय करा हुआ है. मतलब इसमें और कुछ भी नहीं है अगर आप देखोगे तो. लेट्स ओपन एडिटर. बाय द वे, फॉर एनीवन हु हैज अ जीमेल अकाउंट, right, you can create a cloud account and get this id at shell.cloud.google.com, and you get it for free. So basically everything with this code assist and ये सारा पूरा environment, this is available for anyone with a Gmail account. ठीक है, ओलामा बैकएंड ये विजिबल है, ये क्लियर आ रहा है, राइट. तो इतना ही है इसमें. ओलामा की इमेज थी, ठीक है, उसमें मॉडल डिक्लेयर करा मैंने अपना यहाँ पर, जेमा 34B. ओलामा पुल कमांड रन करी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये इमेज है इसके अंदर यहाँ पे. और बस ओलामा सर्व, बस इतना ही डॉकर इमेज है, और इतने में मेरा 4 बिलियन पैरामीटर्स का एक ओपन सोर्स मॉडल रेडी है टू डिप्लॉय. तो that is all. Yeah, and what you can do here now is can go back to a terminal. ये सर्विस डिप्लॉय हो जाएगी हमारी. I don't think it should take more time.
uh, okay, right, and just this one thing. Let's take this URL. Mm, तो कमांड लेकर आनी पड़ेगी इसमें। हाँ, right. I can pass it in a prompt. It is as simple as I'll just keep it to why is the sky blue for now, right? And मैं यहाँ पर अपना endpoint change करके I'll copy this endpoint, uh, paste and run. क्या हो गया इसको? Okay. Okay, I think it. So what I really wanted to show was that you can deploy a model in no time, and then you can start sending it requests, and then you get an output. This happens in real time, right? And अगर आप इसके साथ, and of course, right, you can build on top of this. If I clear this out, and now I, let's say, run this command with the output. So now the second request is faster, and you can continue to send requests, and it will only charge you per request basis. So for every, it will only charge you for per request, right? And you get a complete output back in about 11 seconds or so. That is all. That is all I wanted to show. Function calling and how you can get started with serverless GPUs, with deploying your open models on serverless GPUs and hosting them yourselves. That's all. Thank you so much. Thank you so much for bearing with me. Yeah, I hope this was helpful in some way or the other. Otherwise, feel free to reach out. Yeah, more than happy.